पर निवेश को लेकर देखिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और एक बार फिर से बेंगलुरु में सीएम डॉक्टर मोहन यादव also request Shri Chandramouli Shukla, MD MP Industrial Development Corporation on stage. Can we have a round of applause for him as well? तो देखिए मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयासरत रहते हैं और एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में किस प्रकार से निवेश शुभ कार्य करने से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, तो इसी के लिए स्टेज पे बैठे हुए सभी डिग्निटरीज से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस आज के कार्यक्रम को एक शुरुआत दीजिए। Shri Raghavendra Singh sir to kindly felicitate our Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav sir. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इनको एक सम्मानित किया जाए और इनका स्वागत किया जाए। Can we have a round of applause? स्वागत करते हैं श्री मोहन यादव जी का, जिनकी सच्ची नियत, निष्ठा और सही नीतियों के चलते मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव और उल्लेखनीय प्रगति देख रहा है। I would also request you to please welcome Mr. Lehar Singh Siroya, Member of Parliament, Rajya Sabha. Can we have a round of applause for Sora as well? Thank you so much, sir. Now, can I please request Shri Chandramouli Shukla, sir, to kindly felicitate Shri Sumit Mitra, who is the MP of LAP India. Along with him, I would request you to please felicitate Shri Shantanu Roy, CMD Delhi. Can we have a round of applause for him as well? And I would also request you to please felicitate and welcome Miss Smita, MD of ANSR. And last but not the least, can I please request you to please welcome Mr. Manish Singh Chauhan, Director, Noise Group. Thank you so much, gentlemen. And now, it is time for us to enlighten you more as to why we all have gathered here. What is the purpose? What are the opportunities? What are the prospects? And what is the future that holds for all of us present here? And to do that, with a round of applause, can I please once again welcome Shri Rabindra Srikantan sir, who is the Chairman CI. लगातार मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयासरत रहते हैं और अब देखिए उद्योगपतियों से चर्चा करने के लिए, साथ ही उद्योग नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए कि आप मध्य प्रदेश में आइए। मध्य प्रदेश की सरकार आपके लिए सदैव नई नीतियों के साथ में और Indeed, a privilege and a great pleasure to be here with all of you today. On behalf of CI Karnataka, I extend a very warm welcome and a heartfelt welcome to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav.
and his esteemed delegation, we are truly honored by your presence here in our state, sir. I would also like to extend a warm welcome to all dignitaries, industry leaders, participants who have joined us this afternoon. Thank you for making time to be part of this important interaction, an opportunity to learn more about the dynamic state of Madhya Pradesh and explore immense business and industrial opportunities it offers. Madhya Pradesh has emerged as a promising destination for investment with its proactive governance, robust infrastructure, and progressive policy framework. I am confident that today's session will offer valuable insights and open new avenues for collaboration and growth for all of us. I would like to take this opportunity to reiterate CII's commitment to India's industrial development. CII firmly stands with the state of Madhya Pradesh in its pursuit of becoming Atmanirbhar state and remains a committed partner in this transformative journey. I must acknowledge the visionary and dynamic leadership of Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav. Since assuming office, he has consistently demonstrated a very strong focus on industry-led development and proactive engagement with business community. This is his second visit to Bangalore in less than a year. Itself is a testament to his commitment to attract new investments and deepening industrial ties with Karnataka. I encourage all of you present here to make the most of this opportunity, understand the state's investment potential, get familiar with the sectoral strengths, and take a close look at all the supportive policies, incentives being offered by the state of Madhya Pradesh. With this, I once again extend a very warm welcome to everybody and look forward to a very fruitful, engaging, and forward-looking session to help us build a stronger partnership and unlock new growth opportunities. Thank you again and wish all of you a very, very productive afternoon. Thank you so much, sir, for setting the tone and giving us a warm welcome. And now, I would request you all to please focus on the screen because we have a small audio video that we are going to present, which is about the industrial ecosystem and the prowess of Madhya Pradesh, and which will inform you about the infinite possibilities. Can we please have the video? If you seek a land where infinite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and has many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources तो देखिए यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और बता जा रही है कि क्यों निवेश के लिए मध्य प्रदेश अनुकूल है और सबसे बेहतरीन है। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है ही, लेकिन साथ ही इंडस्ट्रियल लैंड भी है। यहाँ पर लेबर भी आपको मिलेंगे और स्किल्ड लेबर मिलेंगे। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की जा रही है sights, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When
you find infinite possibilities align in one place. You know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. I think that deserves a huge round of applause, because that was just a glimpse of what are the infinite possibilities that we should be looking forward to. अनंत संभावनाओं के बारे में हमने उसके बारे में कुछ झलकियां देखी, और इसी के साथ मैं अब यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड MP, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, जो अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश में क्या क्या है उसके बारे में हमें और जानकारी देंगे। सर के लिए एक और बार जोरदार तालियां हो जाए। Vande Mataram. Good evening. Yes, as you must have seen in the video presentation, that Madhya Pradesh has got enormous rather than finite possibilities. How to make more finite possibilities, realize the crowds देखिए, बताया जा रहा है कि क्यों निवेश के लिए मध्य प्रदेश अनुकूल है, उचित है, और क्यों मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं, इसको लेकर के जानकारी दी जा रही है। IAS श्री राघवेंद्र कुमार भी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल साथ ही इंडस्ट्रियल लैंड है, और यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश में IIT, IIM, निफ्ट, मैनिट जैसी कई संस्थाएं हैं। साथ ही यहाँ पर 6 वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी है, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इन सभी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर उद्योग एवं रोजगार वर्ष के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें ये बताए जा रहे हैं। और निवेश को लेकर यहाँ पर तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार उद्योग नीतियों के साथ में, जो कि देश में सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे बेहतरीन है, आपको सरकार यहां पर पूरा साथ देगी। और देखिए, जब कभी MOU होता है कंपनी की और सरकार के बीच में, तो उस MOU के बाद भी सरकार लगातार कंपनी के साथ में टच में रहती है, कंपनी के साथ में बातचीत की जाती है, और यदि किसी भी तरह की यहाँ पर उद्योगपतियों को समस्या आती है तो उसका निराकरण भी समय से किया जाता है। In the last year that we had international interactive sessions, we had a national interactive session, and we are here in Bangalore again in 6-7 months. We have to limit the regional disimbalances. We had regional industry conclaves in Ujjain, Jabalpur, different areas of Madhya Pradesh, so that there is a kind of parity amongst the state, and the state's strength is showcased in full way. So I will not go by the numbers, you have seen those are there. So we had around 30 lakh and 77,000 crores worth of intention to invest in investment proposals during the Global Investors Summit. Now our work did not stop there with GIS, but we are very careful that the kind of opportunities, the kind of leads we have generated during देखिए, यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया गया संभाग स्तर पर, और उसके बाद में
फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। In process, they have selected the land and we have shortlisted the land parcels. And we are also thinking of creating a well-grounded industrial infrastructure. And for the very first time, we have taken support of central government through special capital assistance, and we are going to move for working women hostel in different parts of Madhya Pradesh. We are also aware that ease of doing business and reducing compliance burden will be one of the key factors if we want to move ahead in Madhya Pradesh, and that is the most difficult thing for the investors to look in any state or any place in the world. So we will have a very user-friendly interface through artificial intelligence and machine learning, and we'll have a very robust investment portal that will have end-to-end investment tracking, and it will be very positive development from our side, and it will be very beneficial for you. We are also very sure that whatever we see here or at any other place, whatever we place, we should we are obliged to have that place completed in its fullest form. So let me tell you that with the support of State Government of Madhya Pradesh, with the blessings of Honorable Chief Minister Sir, so previous year was one of the best years for investment, promotion, assistance, disbursement. And if I club MSME sector together with the industry sector, so we have disbursed more than 5,200 crore rupees in 1 year. And we are, I can say with lots of pride and guts that ours has become a system. We are almost updated in the industry sector. We are more than updated in MSME sector. We are now searching cases for MSME sector if somebody is there to whom, because we have budgeted in such a way that we are updated in investment policy, investment promotion, assistance, disbursement. So this is one key factor I am going to tell you. And then second thing, that we are going to make the entire system IT oriented, AI ML oriented. Nobody from investor side is going to run from pillar to post for investment promotion, assistance, disbursement. यहाँ फाइल लगाइए, वहाँ फाइल लगाइए, यहाँ इस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस जाइए, बिल्कुल नहीं। ये जितने भी डिस्बर्समेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5,260 करोड़ के डिस्बर्समेंट दोनों सेक्टर्स का मैं कह रहा हूँ कि फॉर पास्ट 6-7 मंथ्स मोर देन हाफ 70-80% इसमें हम लोगों ने वन स्ट्रोक ऑनरेबल सीएम साहब के सामने उसको हमने सिंगल से किए हैं, सो दैट कि जो जितनी तरह की आपको कहीं परेशानियां या कहीं पे आपको शिकवा शिकायतें के मौके रहते हैं वो सब हम खत्म करते हैं. सो दैट इज वन प्लेस बिफोर दिस ऑडियंस, बिफोर ऑनरेबल सीएम साहब मैं बेंगलोर में करना चाहता हूँ. We will not only be on time, will not only be quick and responsive, but आपको पूरा IT enabled system रहेगा from start to finish. उसमें अगर एक चीज आपने देखा कि end to end पर हम इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम रखेंगे, वहीं से आपको NOC और वहीं से बाकी चीजें भी फ्लो होना शुरू होंगी. मैं बहुत ज्यादा इनके डिटेल में नहीं आऊंगा क्योंकि काफी सारा समय आप लोग देख रहे हैं, पर आप अगर ध्यान से इसमें देखें तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूँगा. Just see the entire gamut of policies which has been launched with the blessings of Honorable Prime Minister साहब in Bhopal. आप देखें इसमें कई ऐसी पॉलिसीज हैं जो भारत भर में कहीं नहीं होगी. एंड आई बिलीव अगर कोई मुझे अगर काउंटर करना चाहे इसके ऊपर, जीसीसी जैसे है उसकी पॉलिसी शायद किसी और स्टेट ने बनाई हुई है, मैंने मुझे तो आई डोंट रिमेम्बर. इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में पॉलिसी है, सिविल एविएशन में पॉलिसी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसीज है, ड्रोन में अलग से पॉलिसीज है, वीजीसी की पॉलिसी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. बट आपको वट एवर यू वांट टू डू यू विल फाइंड दैट मध्य प्रदेश हैज गॉट अ काइंड ऑफ सोल्यूशन. मध्य प्रदेश हैज डिस्कस्ड विद डिफरेंट सेक्टर स्टेकहोल्डर्स एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट दिस. मैं एक चीज चूंकि एमएसएमई का चार्ज मेरे पास में है और स्टार्टअप का काम भी देखता हूँ,
मैं यहाँ से बिल्कुल एक विश्वास के साथ अनाउंस करना चाहता हूँ कि स्टार्टअप पॉलिसी अगर मध्य प्रदेश से बेहतर किसी की हो तो जरूर सामने आए। तो वो दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसी वी हैव क्रिएटेड। और स्टार्टअप के इकोसिस्टम के लिए जो भी उसकी इंसेप्शन कंसेप्चुलाइजेशन से लेके फिर उसके उस चीज को ग्राउंड पे उतारना, उसको एक्सलेट करना, डिफरेंट फेजेस में स्टार्टअप को जो सपोर्ट, एंजल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, बहुत तरह के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस क्रिएट करने का, आप उसको पॉलिसी को पढ़ेंगे देन यू विल बी सडनली रियलाइजिंग। तो देखिए यहां पर जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो उद्योग नीति है वो सरल है और यहां पे निवेश करना बहुत आसान है और सरकार ने निवेश नीति को बेहद ही सरल रखा है। आपको अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे, आपको अलग अलग पेपर वर्क नहीं करने होंगे, आपको एक साथ में यहां पर सरकार सहूलियत देती है और इसी को लेकर यहां पर जानकारी दी जा रही है। और देखिए बेहद ही एक खास कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पे तमाम उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी संबोधन होने वाला है, उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे। और देखिए मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, आईटी और स्टार्टअप्स को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एफडीआई की अगर उसमें एफडीआई निवेश में अगर एफडीआई है तो उसके लिए भी एक मल्टीप्लायर 1.2 टाइम्स का। देखिए बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में आप निवेश कर सकते हैं, निवेश की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, आईटी और स्टार्टअप्स में, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हाईटेक एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। और इसी को लेकर के यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जानकारी देंगे। अब से थोड़ी ही देर में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और इससे पहले देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार ने किस प्रकार से जो उद्योग नीति है उसको बेहद ही सरल रखा है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष है ताकि इससे प्रदेश में नए निवेश आए, रोजगार के नए अवसर जो हैं वो सृजित हो और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिले। मध्य प्रदेश में लैंड और लेबर जिसकी कमी नहीं है, यहां पर स्किल्ड लेबर है और किसी भी उद्योगपतियों को यहां पर उद्योग लगाना हो तो आसानी से उनको यहां पर लैंड और साथ ही लेबर मिलेंगे। अगर किसी की वैसे में पॉलिसी हो तो वो भी बता सकता है मुझे, आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। सो वी हैव गुड पॉलिसी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारी है। एक्सपोर्ट में हम लोगों ने एकदम से नई पॉलिसी एक्सपोर्ट में लेके आए, लॉजिस्टिक में हम नई पॉलिसी लेके आए, उनके डिटेल आपके सामने हैं। आप सब लोगों को आपके मेल अकाउंट्स वगैरह आपके मेल अकाउंट पे उनके डिटेल्स में आपको जरूर भेज दूंगा। कुछ हमारी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी है जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन के चांसेस अच्छे हैं और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं, उनके लिए एडिशनैलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दी जनरल पॉलिसी, एग्री डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में है, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस में है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। टेक्स में है, गारमेंट, फुटवेयर, टॉयज। अब ये सेक्टर एक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा लेबर ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के यहाँ चांसेस रहते हैं। इन्हीं में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर के थ्रू और बाकी इंडस्ट्री सेक्टर के थ्रू हम ये जो आप देख रहे हैं नाम गारमेंट, फुटवेयर, टॉयज, एक्सेसरीज के साथ में, इसी में हम सोच रहे हैं कि फर्नीचर और तरह की चीजों को भी जोड़ा जाए। तो हमारी कोशिश दोनों तरफ है। अभी हमारे फ्रेंड्स जो हमारे ऑफिसर्स आपको आईटी, आईएएस और टूरिज्म वगैरह के बारे में आपको और डिटेल बताएंगे, पर हमारी कोशिश ये है कि हम उन सारे सेक्टर को जरूर कवर करें जहाँ पे हम एक ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाए। प्लस हमारा एक दूसरा इंटेंशन है, एरोस्पेस और डिफेंस की बात करना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन एक तो काफी सारा हो वैल्यू चेन में, और दूसरी चीज ये है कि वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी हो। और इस समय एरोस्पेस और डिफेंस के बारे में इस समय जिस तरह के पूरे देश आते हैं और जिस तरह के परफॉर्मेंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ और टीम इंडिया और सबका हमें बहुत खुशी होती है। उसके लिए भी अलग से हमारी पॉलिसी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह के लिए पॉलिसी है।
आगे जैसे मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो पॉलिसी है वो एक बेहतर पॉलिसी देने की कोशिश की गई है। लॉजिस्टिक की पॉलिसी आपके समक्ष है, वो भी क्योंकि मध्य प्रदेश इज एट द सेंटर ऑफ कंट्री, तो वहाँ पे लॉजिस्टिक और वे हाउसिंग के बहुत बड़े हब बनने की संभावनाएं हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। स्टार्टअप और इनोवेशन के बारे में जैसा मैंने आप कहा था कि स्टार्टअप की पॉलिसी, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इसको एक बार जरूर आप इस स्टार्टअप की पॉलिसी को देखें। एक आप देखेंगे कि एक ऐसा स्टेट है जो आपको देखने में भी, आपने अभी जो वीडियो प्रेजेंटेशन था उसमें भी देखा, we have more than 100,000 acres of industrial land bank, more than 340 industrial parks. We have strategic connectivity, many industrial corridors go through Madhya Pradesh. We are one of the best states in ease of doing business and reducing compliance burden. And we are entire country. We employ around 8.6 million persons. We are doing well in the startups, but we want to do much better in the startup system also. So these are some of the industrial parks for investors. I am just giving a kind of picture. Medical devices park at Vikram Udyogpuri, Jain PM Mitra Park, which is going to come in Dhar. Equipment manufacturing in Narmadapuram, then leather footwear park at Sitapur, Murena, multimodal logistic park at Pithampur, and there are upcoming IT parks. Ashish will show you during his presentation. There are some of the things you can see. IT Park 3, which has been created by Industrial Development Corporation. You can see that. I have world-class infrastructure. PM Mitra Park, you may be aware that it is going to be created on 2,100 acres of land at Dhar. It will have world-class facilities. It will be supported by central government, and the entire system will be very robust. So thank you very much. Thank you for listening to us. मेरी बस आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू विजिट मध्य प्रदेश। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार आकर जरूर मध्य प्रदेश को देखें। थैंक यू सो मच सर। हमें ये बताने के लिए कि अगर हमारे यहाँ पर जितने भी मेहमान बैठे हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया तो प्रोसेस कितना स्मूथ होने वाला है, कोई झंझट वाली बात नहीं होगी। उसी के साथ नए पॉलिसीज, भले ही वो MSME हो या जो आपने 18 नए पॉलिसीज की हैं 2025 के लिए, तो उनके बारे में बताने के लिए बहुत धन्यवाद। एंड इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सपना है कि मध्य प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में अपना संपूर्ण और अहम योगदान दे सके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऑनरेबल CM जी ने इस साल को अनाउंस किया है टू बी सेलिब्रेटेड एज द उद्योग एवं रोजगार वर्ष। सो इसी बात पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी श्री आशीष वशिष्ठ जी को, IAS मैनेजिंग डायरेक्टर MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, who's going to be talking about the opportunities in the IT, ITES and ESDM. Can we have a round of applause for the gentleman? माननीय मुख्यमंत्री जी, esteemed dignitaries on the dais, industry leaders, delegates and media. Good evening to all. I will be presenting about IT, ITS related investment opportunities in Madhya Pradesh. This presentation will cover 3 key features. First is about how the dynamics are shifting from established hub to new tech emerging one. Second, how Madhya Pradesh is emerging as leading
Tech Hub. And third is about the MP Tech ecosystem, which will cover 4 new policies, which is recently launched under the able guidance of our Honorable Chief Minister. First, I will cover to the first point. When we talk about the technology hub, we talk about the cities like Delhi, Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai, Hyderabad. These are the places where technology emerged. These cities created an ecosystem for technological innovation. But now, we are witnessing the major shift. Cities like Kanpur, Bhopal, Jaipur, Indore, Raipur, they are developing as a new technological hub. Now, what are the reasons? When we talk about the reasons, there are basically 4 reasons why this dynamics is shifting. The first is about rising cost of operation. The current market scenario in matured hubs like Delhi, Mumbai, Bengaluru is there's 30 to 40% increase in talent pool cost in the past 5 years. When we see about the real estate cost, there is an increase of 60 to 80% increase. But when we talk about the new emerging hubs, talent pool costs are lower than the matured hubs, and the real estate costs are affordable. The second point is talent acquisition and retention. In matured hub, there is a saturated talent market with high degree of competition. Also, there is a very high attrition rate of about 25 to 30%, which is impacting the client delivery. But in case of emerging hub, the limited competition is offering better access to talent pool, and we can see the less attrition rate as compared to the emerging hubs. The third reason is highly stressed infrastructure. In matured hubs, there is limited availability of real estate for expansion. But in emerging hubs, there are new and upcoming real estate development which is close to the city. When we talk about the incentive, in matured hubs, limited incentives are being offered for setting up centers in matured hub because there is already an abundance. But if we see in emerging hubs, incentives such as capital subsidy, interest subsidy, all are provided to establish. श्री वशिष्ठ द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में नए और न्यू इमर्जिंग टेक्निकल हब के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। किस प्रकार से जो नया टेक्निकल हब है वो मध्य प्रदेश में उभर रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, किस प्रकार से जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आता है वो मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य जिलों की तुलना में मध्य प्रदेश के जिलों में काफी कम है। Available and 15% of talent pool employed in 5 tier 2 cities, which includes Indore also. Now coming to the second part, how Madhya Pradesh is emerging as tech hub. In Madhya Pradesh, we have a vibrant tech ecosystem. We have 5 IT special economic zone. We have more than 15 IT parks. There are more than 50 large IT companies presence is there. Approximately more than 1200 tech startups are present. When we talk about the technically skilled workforce, there are more than 300 colleges that are offering technical education. And every year, more than 50,000 students are passing, having UG, PG and diploma. In Madhya Pradesh, we have institutions of national importance like IIT, IIM, AIMS and IIIT DM. With policies such as IT-ITS policy, startup policy, incentives such as CapEx incentive, interest subsidy incentive, employment generation incentives are being provided to companies. When we talk about the data center, we need 24/7 reliable power supply. And I'm proud to say that Madhya Pradesh has 24/7 power supply. And renewable energy is constituting 20. जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक अनुकूल वातावरण है जिससे कि जो तमाम उद्योगपति जो मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, निवेश करने को लेकर उत्सुक हैं, सरकार उनके लिए सबसे आसान। लाइक इन हैदराबाद इट इज 115, इन न्यू दिल्ली इट इज 175, मुंबई इट इज 225.
The second part is cost of living. The price we pay for same or similar kind of services. In Indore, if we want to get a particular services, we have to pay 18.75 rupees. But for the same services in Hyderabad, we are paying 22.47 rupees. In Bangalore, it is 25. In Mumbai, it is more than 26. The pollution index, I already mentioned the air quality index is very good in Madhya Pradesh. The pollution index is also very low. The traffic commute index, the average time taken in minutes to commute a distance of 10 km. In Indore, to travel a distance of 10 km, the average time is 34.37 minutes. But if we see in different cities, in Hyderabad, it is taking 40. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सीधी तस्वीरें बेंगलुरु से लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से संवाद करने के लिए, निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करने के लिए, इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं। और आपने सुना किस तरह से मध्य प्रदेश में अनुकूल वातावरण है हर आयाम में। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतरीन है, जहां अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटीज से मध्य प्रदेश की जो शहर हैं, मध्य प्रदेश के जो राजधानी हो, इंदौर हो, यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर है। इसी के साथ ही समय सीमा जो कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में लगती है, वह समय सीमा भी बहुत ही कम है। जहां बताया जा रहा था कि किस तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में आप एक जगह से दूसरी जगह। Global Investor Summit, we launched 4 key policies in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Drone Promotion Policy, Madhya Pradesh Semicon Policy, MP GCC Policy, MP AVGC XR Policy. In next 4 slides, I will talk briefly about these policies. MP GCC Policy. The objective of this policy is to position Madhya Pradesh as country's most preferred GCC destination, providing best-in-class infrastructure, cost efficiency, and skilled workforce in Tier 2 cities. Some of the incentives provided in the policy are mentioned in the slide. We are providing capex assistance up to rupees 30 crore. तो मध्य प्रदेश में किस तरह से नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को बेहतर से बेहतरीन की ओर जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, चाहे वह लैंड बैंक के रूप में हो और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से सुविधाएं निवेशकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसका एक उदाहरण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो मध्य प्रदेश में हुई उसे लेकर भी बताया गया कि किस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों ने रुचि दिखाई थी और बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में निवेश आया। लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा की फैक्ट्री, जिसमें वंदे भारत के विभिन्न प्रकार के वंदे भारत है, मेट्रो है, सभी नई प्रकार के आधुनिक संसाधनों से युक्त नए नए डब्बे हमारे बेंगलुरु के साथ साथ भोपाल में भी बनेंगे। मैं आपका एक तरह से धन्यवाद भी देता हूं और मेरी यात्रा को सार्थक करने के लिए आपको स्मरण कर रहा हूं। इस अवसर पर अपने उद्योग जगत के अलग अलग स्वनामधन्य सभी महान अपने क्षेत्र की हस्तियां यहाँ बैठी है। मंच पर विराजमान सम्माननीय MD लैब श्रीमान सुमित मित्रा जी, आपका भी अभिनंदन है। श्री रविंद्र श्रीकांतन जी, अध्यक्ष CII कर्नाटक स्टेट, श्री स्मिता जी MD ANSR, मनीष सिंह चौहान जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और माननीय हमारे स्नेही लहार जी, आपका अभिनंदन है। हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, जोरदार अभिनंदन।
मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस बदले हुई परिस्थिति में यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10-11 साल में जिस परिस्थिति में देश पहुंचा है, हमको केवल अभी देश को वो जो पुरानी आदत थी उस आदत से हम सब भी उसमें इन्वॉल्व थे कि हमारी कोई इतनी संक्षिप्त समय में युद्ध जीत सकते इसका विश्वास करना कठिन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना के लिए। हमको तो लगा कि अब युद्ध चालू होगा, मालूम पड़ा दुश्मन आड़ा पहले हो गया, युद्ध बाद में चालू होने। जिस ढंग से ब्रह्मोस मिसाइल से लेके सारी चीजों का त्वरित गति से एक के बाद ताबड़तोड़ जो हमले हुए और आसमान पे रोज रात को ऐसा देखते कि दिवाली के फटाके फूट रहे हैं, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। उनकी तमाम प्रकार की कौन से ड्रोन ने क्या था, सब नकली माल सामने आ गया। असली माल तो दिखा ही नहीं। असली माल के फटाके तो हमारे फूटते थे तो मालूम पड़ता था कि आज रावलपिंडी भारत माता की जय, आज सियालकोट धाम, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे चला है। रात की 11-11:30 बजे जाकर राष्ट्रपति से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चेहरे की भाव भंगिमा बता रही कि हवा बची नहीं थी, सारी निकल गई थी। क्या कमाल का परफॉर्मेंस आया अपने तीनों सेनाओं के संयुक्त तत्वावधान में। हमारे लिए गर्व की बात है ये अपने लिए आज के दौर में, जहां मैं अगर बात कर रहा हूं तो इसका कितना महत्व है। सेना तो अपनी बाउंड्री से बाहर निकली नहीं। हमारी जो निर्धारित भारत सरकार की अपनी एलओसी वगैरह है और अंदर से मार करने के लिए जिस ढंग से हमने 12-15 दिन सेना को दिया कि भाई आपको छूटे, आप करिए जो करना हो, और जिस ढंग से सेना की पीछे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनएसए और तमाम प्रकार के जितने भी हमारे सरकार के उपक्रम है उनके साथ तालमेल कराते हुए जो कदम उठाए गए। अब ये अलग बात है कि हमने हमारे एक नए दौर में प्रवेश कर लिया है। एक तरफ वो अशांत देश जो लगभग 71 के बाद से, 71 के पहले की ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बात सही कि 65 में भी सिर पे तो आया था। ये जाते हैं कि जब अपन किसी को मार पिटाई में दोस्ती हो जाए ना साहब, लाहर साहब, तो 2, 4, 10 तो उसके ठोक दो भड़ 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 भड़, फिर वो कहता कि मार के बता, अभी हाल तो मारा, फिर एक बार मारो उसको, फिर कहता अब मार के बताओ। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, आपके हाथ पांव दुखिया है लेकिन उसकी आदत नहीं सुधरती। तो इसलिए उसको एक नए दौर में पहुंचा देना मोदी जी के नेतृत्व में कि भाई ये तो छोड़ो, अब तो बहुत दिन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक में 1-2 साल का अंतर नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर है, ये चालू ही रहेगा। इधर कुछ हुआ नहीं कि उधर उसका तुरंत असर दिखेगा। और जहां हमारे दुश्मन दिखेंगे, अब मैं कभी कभी इस युद्ध का विश्लेषण करता हूं तो मुझे विश्लेषण में आपको भी, आपने सबको ही ध्यान में आएगा कि एक बार में मैदान में जाकर के घर में घुस के मारने का सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा रूप देखा अपन ने मोदी जी के नेतृत्व में। जब हेलीकॉप्टर में हम सैनिक गए, वहां जाकर के उनने अपने अलग ढंग से स्ट्राइक की। वो दौर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो थोड़ा सा परंपरागत शैली जैसा लगा। दूसरे दौर में हमारे हवाई जहाज गए और वो अभिनंदन मूछ वाला पकड़ा गया था, हमने सबने देखा। जब वो शुरू में तो आपको भी अपने को भी लगा था कि वो कह रहे थे कि ये बैठा हुआ केवल बात कर लो, बात कर लो। हमने कहा एक फोन कर ले, क्या बड़ी बात है, कर ही ले। लेकिन मोदी जी और बड़े वाले थे, कोई बात नहीं करेंगे, हमने तुम्हारे सैनिक ने हमारे अड्डों पे आकर मारा, आतंकवादी हमला हुआ तो हमने आतंकवादी वहां जाके मारे। अब हमारी सेना को पकड़ा, अगर उसको कुछ हो गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सच मानो तो मैं भी थोड़ा दिन में तो डबल माइंड था, कहाँ चक्कर मुंह पे लग रहे हैं इसके, वाले बात अपना आदमी तो ले आएगा, इसका मालूम क्या होगा। लेकिन सांप बगैर बात करे वो मूछ नीचे नहीं होने दी। जोरदार अभिनंदन करो उस दौर का।
मुंह ऊपर ही रही और बगैर बात करे दिन में चाय पिला रहा है, बिस्किट खिला रहा है, बताते बताते आखिरी में कितनी बार थक गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बात करो तो ले जाओ तुम्हारा आदमी, हमारा क्या जा रहा है। अब कभी कभी ये सोचते कि उनने जाके करा क्या था, कोई वो दिवाली के फटाके तो चलाने गए नहीं थे, गए तो मारने गए थे और मार के आए भी सही। तो ये कितना उस समय का दौर था और आज का दौर तो और बड़ा वाला हो गया। अब ये अलग बात है कि हमारी मर्यादा गणतंत्र की, लोकतंत्र की, माननीय प्रधानमंत्री की भी विश्वमान्य नेता है। ऐसे में हमने उनको, इसको सरल भाषा में कहते हैं, मारा भी और रोने भी नहीं दिया। ये जो तरीका होता है, मारा का मारा और रोने नहीं दिया उसको, और रोने क्या नहीं दिया उसको, रोने के बाद में भी रोने लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन जिस प्रकार का समय आया है वास्तव में, आज के समय में ये हमारी उद्योग निवेशकों की बैठक में उसकी महत्ता भी है कि हम व्यापार, व्यवसाय, धन, संपदा, वैभव भारत में कब नहीं था। भारत तो सदैव सोने की चिड़िया था, लेकिन सोने की चिड़िया बने रहने का नुकसान आया कि टाइगर सब चिड़िया बिड़िया सब बराबर कर देता था। हमको 1000 साल तक लोग लूटते रही। लेकिन आज बदलते दौर में है कि हम टाइगर भी हम ही है और चिड़िया भी हम है, पूरा जंगल हमारा है। दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान जो बनी है, ये इस बात की महत्ता है। व्यापार व्यवसाय तो कुशलता से चलता, सद्भावना से चलता, नीति से, व्यवस्थाओं के हिस्से चाहिए। इसीलिए आज के इस दौर में जब मैं बेंगलोर में आकर आपसे बात कर रहा हूं, तो यहाँ के इस दौर में सिलिकॉन वैली में होने वाले इस कार्यक्रम में मंच पर भी सारी हस्तियां दिखाई दे रही और आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं। मैं पिछले अगस्त महीने में भी आया था और अगस्त महीने में आकर के व्यापार व्यवसाय के लिए न केवल यहाँ आया बल्कि देश भर में और अपने प्रदेश में भी लगातार हमने निवेशकों से बात की। और ये बात बराबरी से कहते कि आप यहाँ भी व्यापार करिए, हमारे यहाँ भी करिए। ऐसा मत करो कि यहाँ ताला लगा दो और हमारे यहाँ चलो। यहाँ भी करना है, ये भी बढ़ाना है और वहां भी आना। जितनी सरकार की व्यवस्था हो सकती, जहां जहां कर सकते हो, उन सारी बातों के लिए चलना। और ये तो हमने समझ लिया कि मेड इन इंडिया का क्या महत्व है, हमको मालूम है। हमारे मेड इन इंडिया के आप बताओ कितनी सारी बातें हुई, लेकिन काम तो ब्रह्मोस मिसाइल के ही पड़ा ना, असर तो वहीं से आया। तो ये जो आज के दौर में जिसका महत्व है, मैं मान के चलता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके IT तक, रियल एस्टेट से लगा करके एनर्जी तक, सभी प्रकार के सेक्टर में। और आप में से भी कई लोगों ने हमारे यहाँ GIS में भी भाग लिया होगा, पहले भी बीच में आए होंगे। हमने हमारी पॉलिसियों को भी और सरलीकृत किया है और व्यवस्थाओं को सुधारा है। और उसी प्रकार से जो जो आपके मन में शंका होगी, जो जिस प्रकार से भी जुड़ना चाहें, मैं आज के इस हमारे इंटरेक्टिव सेशन में खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई मध्य प्रदेश में, उसके लिए पुनः दोहराने आया हूं कि जो पॉलिसियां हमारी बनी हुई है, उन पॉलिसियों में तो हम दे ही रहे हैं। वो तो हमने अपने यहाँ प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में उद्योग निवेश प्रकोष्ठ लगा दिया है कि आप केवल सिंगल विंडो में बता दो, नल, बिजली कनेक्शन, ये वो सब चीजों के लिए सिंगल विंडो से बात होगी। और उसके बावजूद भी अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट लाते हो तो CCIP के माध्यम से, जो मंत्री नहीं कर पाएंगे वो मुख्यमंत्री के लेवल पर हम आपके लिए तैयार है कि जो आपके लिए निवेश के प्रस्ताव आए। सरकार के मुखिया होने के नाते से हर प्रकार से व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना ये हमारी नीति है। और खासकर उद्योग और रोजगार का वर्ष हमने डिक्लेयर किया है। इसलिए उस तरह से बढ़ते हुए पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली तो सरप्लस है। हमारी बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो चल रही है और कई राज्यों को बिजली मिल रही है। हमारे ऐसे कई प्रकार की अलग अलग चीजों का एक बहुत अच्छा हमारा अपना भंडार भी है। हमारे लिए पिछली बार के 2 साल 4 साल पुराने सरकार तो हमारी 1.25 साल की हुई है, लेकिन 5 साल पहले, 10 साल पहले कई कारण से जो हमारा बैकलॉग था, विभिन्न प्रकार की निवेशकों को देने वाला सारा पैसा, लोग आश्चर्य करते, हमने DBT के माध्यम से सिंगल क्लिक से 1 साल में 5300 करोड़ रुपया उनके खाते में वापस पहुंचाया, जिसको जब जब हमने कमिटमेंट किया था, जो हमारी देनदारी थी वो सब देने लगे। किसी का 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, 700 करोड़, कुछ भी हो, हमने कहा हमारे पास सरकार वचनबद्धता से चलती। ये अलग बात है, हमारी सरकार 1.25 साल की है,
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो 4 साल पहले भी व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी बात कर रही थी, 3 साल पहले भी बात कर रही थी। तो हमने कहा कि बड़े से बड़े निवेशक, हैवी इंडस्ट्री में भी, एमएसए में भी और लघु कुटीर उद्योग में भी, किसी भी क्षेत्र में 1 करोड़ का भी निवेश कर रहा है तो साफ सुथरी वचनबद्धता के आधार पर उसको भी निवेश का मौका मिलना चाहिए, और बड़े से बड़ा भी आए उसके लिए भी बराबरी से बात करते हुए सरकार सबको प्रोत्साहन देगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देखो ना, आप तो मेरे से ज्यादा शेयर बाजार अपनी कितनी तेज गति से जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से तो वो अपनी कंपटीशन कर रहे हैं, कौन तेजी से जाएगा। जिस प्रकार का समय चल रहा है, बार बार मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि आइए, एक बार जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। And now, unfortunately, it is bringing us to the end of this gathering that we had. And for the official vote of thanks, can I please request Mr. Manish Singh Chauhan, the Director of Noise Group, to kindly share a few words.